Welcome everyone. Today, we have the honor of speaking with a true industry leader and veteran of the real estate industry, Mr. Sachin Gupta. Sachin sir, as we like to call him. He is the founder of MRE, My Real Estate Services LLP. With over 2 decades of experience, Sachin sir has not only mastered the nuances of the real estate industry, but has also embraced technology with open arms, always. Despite the fact that real estate industry is a little bit tech averse industry to be honest, but still he firmly believes that technology is going to shape the world one day for sure. Sachin sir's commitment to innovation and technology is evident in the fact that he always keeps implementing and exploring cutting edge technology across the world into Salesforce at his organization as well. In today's session, we are going to dive deep into topics such as AI, integration, Septus, and the broader tech landscape. But before we get started, I'd like to introduce myself. My name is Charu, and I work with the product marketing division for 200 OK at Septus. Now, let's get started for a super insightful and fruitful session with a true visionary leader, Sachin sir. I'm into real estate from last 20 years, and we started real estate from a very basic and very small organization. But in 2010 only, I realized that without technology, the kind of inquiries or the kind of system which we need is not possible without having a tech platform in place. So this is how we explored. We even tried local solution and everything. Then slowly we realized that without having a proper platform, we cannot do it, and we cannot even take that onto a next level. So this is how we got into Salesforce, and since then we've been trying new things on Salesforce, and we've been regularly in touch with so many different people. We tried so many things, and finally in 2019 and 20 we got PR, and PR is the one who actually helped us to shape our system in a better way. So earlier we were using a basic Salesforce platform, which was quite customized according to us, but it was not at all an integrated system. It was a basic Salesforce where lead was managed somewhere in Salesforce. Call center was running all together in different system. My marketing channels were running all together on a different platform. My website was running on altogether. It was not at all in sync of what we were doing. But slowly we got into this thing, and PR helped us to do this, to inline all these things in place. And finally, right now we can say that we have a robust system. A small company like us have much better system than other developers or builders who are the major players in real estate. And we are the good thing is this, that today when I look back, I realized that initially when I started with Salesforce, people used to say, "Why do you need so many leads? You already have so much of database in place." So we used to think every time lead to lead hai, data se kya hoga? But slowly, when we started using the system, we started understanding the importance of the database. And now we are in that position that our lead cost is quite low from whatever people or whatever competitors we have. So my lead cost is quite low, and even our lead generation, matlab instant. We are talking to people. We are not talking to unknown faces because we know our database. We are reaching them again and again. So हमें उसका ना real estate is more of a relationship kind of business. जहाँ बंदे को आपने अगर एक बार कोई प्रॉपर्टी सेल की, तो कल उसके रिलेटिव को भी दूसरा कुछ खरीदना है या उसने ही अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है. सो इट्स लाइक यू हैव टू मेंटेन द कंप्लीट हिस्ट्री, एंड एवरी टाइम यू कैन नॉट आस्क कि आपने जो घर हमसे खरीदा था उसकी डिटेल्स क्या है. यू शुड हैव दैट इन प्लेस. और आज के टाइम में वेयर सोशल मीडिया एंड डिफरेंट थिंग्स आर, लोगों को आपका बिहेवियर तक लोग स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ रिकॉर्ड तो मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. So this is how matlab this makes it different from others who are in real estate. Our system is quite good, and the after COVID we realized the importance of having a system. So right now I was recently traveling for vacation, and from there only I was seeing how many calls are being done in my company, what is the closure position, what is the lead generation cost, and everything. It was on my fingertips. So that's the beauty of this system.
this makes our system little different. So what we did, we initially whatever our users wanted to see and their local. So real estate has their own terminologies. So कुछ हार्ड कोडेड सिस्टम जो मार्केट में अवेलेबल है उनमें क्या था that you cannot change the field names and it was little difficult. But in Salesforce we got that edge. और सिस्टम में ना बंदों को वो दिखता है जो उनको दिखना चाहिए और उनकी लैंग्वेज में दिखता है. So that is this is where it makes difference. Secondly, we do lot of training, regular training. You won't believe. कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने और पीआर ने मिलके एक चीज पे महीनों लगा के उसे बनाया है और लोगों को पता ही नहीं है कि सिस्टम में ये फंक्शनैलिटी भी है. सो फॉर दैट यू हैव टू रेगुलरली, मतलब अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय नए को तो करना ही करना है, बट एग्जिस्टिंग को भी रेगुलर आपको ट्रेन करना ही है. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हम लोगों ने ना पूरा मोस्ट ऑफ द पीपल इन रियल स्टेट, मतलब मैं रियल स्टेट के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई लुक एज अ रियल्टर ओनली. तो लोग ना पूरे लोगों को लाइसेंस नहीं देते अपनी टीम में. तो व्हाट दे ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट और कुछ लोगों को दे देते हैं, कुछ को नहीं देते हैं. तो उस वजह से क्या होता है कि उनके यहाँ दो पैरेलल सिस्टम चल रहे होते हैं कि उनके यहाँ एक्सेल पे भी काम हो रहा होता है, उनके यहाँ कुछ लोग सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं. फाइनली वो कभी इम्प्लीमेंटेशन अच्छी हो ही नहीं सकती. In our organization, whenever I see anyone who has a license of Salesforce working on a Excel, that is something which is not even allowed in our company. Matlab, you cannot do that, and it is a, matlab, it's more like a production line of kind of thing. So my marketing guy has to make a campaign within the system. All the leads will come into the system and it will go to the call center. The call center guy has to work on that and has to give it to the sales guy. तो इट्स लाइक अ, एक बंदा अगर अपना काम पूरा नहीं करेगा तो दूसरे बंदे का उसमें अटक जाना है एंड फाइनली वो लड़के झगड़ के उससे करवाएगा. सेकेंडली, लोग क्या होता है कि ओनर्स, स्पेशली मैंने काफी ओनर्स को देखा है, वो ना खुद सिस्टम अडॉप्ट नहीं करना चाहते. सो इट कम्स फ्रॉम द टॉप लाइन. So till the time I won't see the reports in the system, if I'll ask the reports in Excel, they will maintain that into Excel. If I really want to see if my people should use Salesforce or my people should use this system, I have to regularly keep a check that what is happening, and I want to see everything within the system. Otherwise, लोग ये सोचते हैं कि आएंगे अभी करके आते हैं सर, उसके बाद अपडेट कर देंगे, बट वो वही प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है. सो वी कनेक्टेड देयर इंसेंटिव्स, वी कनेक्टेड देयर एवरी पॉसिबल थिंग. मतलब हम लोगों के यहाँ शायद लेट कमिंग उतना बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन अगर सिस्टम में कोई चीज एंटर नहीं है तो उस बात पे जरूर पैनलाइज हो सकता है बंदा. सो दिस इज हाउ अ सेल इज डिसाइडेड कि वो सेल है किसकी. Salesforce is just a piece of land. It is up to you that how and what you want to construct. And there you need a good architect, a good planning guy, and then only anything can be done. तो विदाउट हैविंग अ गुड पार्टनर, बिकॉज हमारे साथ हमने 10 मुझे अराउंड इट्स बीन 13 years नाउ यूजिंग सेल्सफोर्स, बट हमारे साथ भी बहुत बार बहुत ब्लंडर्स हुए. सो टिल द टाइम यू डोंट हैव अ गुड पार्टनर who has knowledge and you who understand what actually you are looking for and doesn't stop, he is not selling, he is giving you a consultancy कि ये आपको नहीं करना है. नहीं तो अभी क्या हम लोगों के साथ क्या होता था कि हमको कुछ अच्छा दिखा, हमने उसको पार्टनर को बोला दैट वी वांट टू डू दिस थिंग, उन्होंने करके दे दिया. लेटर ऑन वी रियलाइज कि हम आगे जाके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अटक गए. then without having a good partner you cannot visualize. हमने कभी नहीं सोचा था that whatever we integrated in the system कि वो सब हो पाएगा. हम सोचते थे वो सारा बहुत बड़ी कंपनी, it is a big kind of expense and you will need that thing, that big integration and big implementation cost and everything. वो हमें नहीं आइडिया था. स्लोली जब मैं पीआर से मिला, ही ऑलवेज गिव अस स्मॉल सॉल्यूशंस कि आप ये करो. सो मुझे अभी भी याद है दैट फर्स्ट इंटीग्रेशन व्हिच वी डिड, तो पीआर ने स्पेशली, इट वाज जस्ट $8-10 वी वर स्पेंडिंग ऑन सम इंटीग्रेशन टूल and then also he gave us a very proper and very cheapest possible solution, an instant solution. It was not कि इसको 2 महीने लगेगा implementation होने के. The day 200 OK was launched, I was among the top
first 10-20 customers who took 200 okay, and from that time when I'm seeing, तो मेरा ना इंटीग्रेशन से लेके पूरी कंपनी में कोई प्रॉब्लम लेके मेरे पास तो नहीं आया है, ना मुझे दिखता है. एंड गुड थिंग इज दैट whatever I ask to PR कि ये इसके साथ जोड़ना है, इसको ऐसे इसके साथ निकालना है, बिकॉज हमारा ना रियल स्टेट और भी बिजनेस में होता होगा, बट रियल स्टेट में बहुत सारी अलग अलग चीजें. वी जनरेट लीड ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक 99 acre, Magic Bricks. We wanted to bring all those leads within the system. बट पैरेलली हमने तो वहां तक पहुंच गए कि हमने उनसे बोला कि हम अपने सिस्टम की प्रॉपर्टीज आपके यहाँ पोस्ट करना चाहते हैं, आप 2-way इंटीग्रेशन दे दो. और 200 ओके से हम उस पोजीशन पे थे दैट वी कुड हैव डन इट, बट वो लोग घबरा गए कि हमारे सिस्टम में पता नहीं है क्या लेके आने वाले हैं. अदरवाइज मैंने उनके सीईओज और सबसे बात किया, 99 एकर्स में भी बात किया, वो लोग नहीं कर पाए. तो और लोगों के हिसाब से हमारा इंटीग्रेशन सिस्टम इज वेरी सॉलिड. एंड आफ्टर 200 ओके, आई डोंट थिंक कि जो महीनों में या वीक्स में जो काम होने की बात होती थी, आज शायद वो 2 से 3 घंटे में पीआर की टीम कर देती है, या बस उनको समझाना थिंग. अगर सही से आपने कम्युनिकेट ठीक कर दिया तो आई डोंट थिंक इट्स अ मैटर ऑफ मोर देन अ डे इन एनी केस. एक्चुअली द डे आई हर्ड अबाउट चैट जीपीटी, सो मुझे ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आई ऑलवेज वांट टू लर्न. So from the very first day, I started using AI. Then slowly, what we did, we even trained our telecallers, we trained our finance heads, and the entire finance team, the commercial department, marketing was regularly using it. तो हमने सबको prompt बनाते कैसे हैं आपको, बिकॉज वी वांटेड कि हमारे यहाँ से जो भी कम्युनिकेशंस किसी कस्टमर को, बिकॉज लोग ना बहुत कैजुअल मैसेजिंग करते हैं या कैजुअल ईमेल्स भेज रहे होते हैं. सो वी वांटेड इट हैज टू बी रिटन इन अ वे कि कम्युनिकेशन, बिकॉज इट रिप्रेजेंट आवर कंपनीज ब्रांड पोजिशनिंग. सो वी वांटेड, तो हमने सबको इस पे ट्रेन किया, चैट जीपीटी पे. चैट जीपीटी पे ट्रेन करने के बाद, बट सिस्टम अलग अलग चलते थे, आपको कॉपी पेस्ट करके यहाँ अपनी उस पे लाके पेस्ट करना होता है. तो बेसिक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हमने उनको सिखाया कि हाउ टू मेक अ प्रॉम्प्ट, व्हाट यू वांट टू राइट, एंड आपको वो एआई को कैसे समझाना होगा. मैं आज भी अपने ट्विटर वगैरह या लिंक्डइन के लिए रेगुलर कुछ ना कुछ कंटेंट, अभी जब से व्हाट्सएप पे एआई आ गया लामा, तो हम लोग लामा को भी बहुत अच्छे से यूज करके इमेजेस भी जनरेट कर रहे हैं, कंटेंट भी जनरेट कर रहे हैं, एंड रेगुलरली पोस्टिंग ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म. बिकॉज व्हाट आई ऑलवेज फील कि मार्केटिंग ना रियल स्टेट में 2-3 तरीके की, एक तो ब्रांड लेवल की मार्केटिंग है, दूसरा लीड जनरेशन मार्केटिंग है, तीसरा इज योर ओन मार्केटिंग. जब तक आप सेल्फ मार्केटिंग नहीं करोगे तो कस्टमर आपसे नहीं कनेक्ट करेगा. आपको उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपको मार्केट नॉलेज है, and you are quite aware of whatever is happening in the market. And in this age of social media, you have to regularly post those kind of stuff. But sometimes you felt कि आपको words, because as PR said, हमारी इंडस्ट्री में ना शायद उतने पढ़े लिखे लोग नहीं है, या इतनी ज्यादा कम्युनिकेशंस की जरूरत नहीं रही, बट एक अच्छा सेल्समैन होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इंस्टेड ऑफ ही कैन स्पीक गुड इंग्लिश और ही कैन राइट गुड इंग्लिश, so that is a challenge. So what we tried कि हमने उनको पहले ट्रेन किया. बट आज भी जब मैं अपने सिस्टम सेल्स फोर्स की बात कर रहा हूँ, अगर सेल्स फोर्स की तरफ देखता हूँ, तो लोग अभी भी ना रिपोर्ट्स बनाना या रिपोर्ट्स को वो करना खुद नहीं कर पाते हैं. फॉर दैट वी हैव अ डेडिकेटेड रिसोर्स हु हेल्प. कोई भी जरा सा भी ट्रिकी 2-3 वेरिएबल फील्ड्स आ गए या 2-3 उसमें कंडीशंस लग गई, तो वो रिपोर्ट नहीं बना पाते. सो आई एम सीइंग दिस को-पायलट एज, फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू वेरी वेल सेड, कि अब शायद इससे एडॉप्शन बहुत फास्ट हो जाएगा. तो जो लोगों को ढूंढना पड़ता था, वो शायद उनको अब एक क्लिक पे या एक प्रॉम्प्ट उस पे आप सामने मिल जाएगा. सो इट विल बी मोर लाइक गूगल. यू राइट व्हाटएवर यू वांट, यू क्लिक इट एंड यू विल गेट द आंसर. You don't have to find it. Right now it was kept somewhere in different shelves. You have to find out in which shelf I left what. So this is it will bring you whatever you want at your or on your fingertips. So this is where I feel कि AI को-पायलट हमारा कम्युनिकेशंस बेटर होगा,
हमारी इम्प्लीमेंटेशन और जो यूजर एडॉप्शन है वो बहुत ज्यादा बेटर हो जाए। पीआर ने फर्स्ट टाइम जब मुझे को पायलट के बारे में बताया और दिखाया तो मेरा पहला क्वेश्चन था कि क्या इंस्टेड ऑफ राइटिंग क्या हम इसे बोल के कर सकते हैं। एंड सेकंड बिग थिंग व्हिच आई वांटेड टू आस्क दैट माय यूजर्स आर नॉट दैट गुड इन राइटिंग द प्रॉम्प्ट्स, सो दे वुड लाइक टू राइट इन हिंदी कि मेरी इस वीक की साइट विजिट कितनी है। सो इट हैज टू बी इन देयर लोकल टिल द टाइम आप व्हाट्सएप का द बेस्ट थिंग व्हाई पीपल यूज व्हाट्सएप, इट्स क्वाइट लोकल। आज ना हम लोगों से ज्यादा शायद हमारा जो बिल्कुल नीचे वाला स्टाफ है या जो लेबर टाइप के लोग भी है वो भी व्हाट्सएप को बहुत अच्छे से यूज करते हैं। आप कुछ भी खरीदने को भेजना है, आप अपने पेंट्री वाले को बोलना है एक चिप्स खरीद के ला, उससे डाउट होगा वहां से फोटो खींच के आपको भेजेगा और एक वॉइस नोट भेजेगा, सर यही वाला मांग रहे थे क्या। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो सेम वेज वी फील कि एआई को पायलट आने के बाद हमारा सिस्टम भी शायद उतना ज्यादा लोग एडॉप्शन बढ़ेगा उससे। सेकेंडली जो अभी सिस्टम पे लोगों का 3 से 3 साढ़े 3 घंटे का एवरेज टाइम आता है यूज पर डे, वो शायद बढ़ के और थोड़ा बेटर होगा बिकॉज लोग ज्यादा अच्छे से पोस्ट करेंगे। एंड थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग उनकी लोकल लैंग्वेज में है तो दे लव टू डू इट। कि माई रियल स्टेट अपने पार्टनर्स बनाता है इन डिफरेंट सिटीज and normally a partner is in small cities there is only one partner and under them there are agents who are working. So first of all मेरे पार्टनर के लिए जो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करता है सिस्टम कि आपको ऑफिस उतने बड़े नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई हैव मोर देन 40 एडवाइजर्स वर्किंग इन नोएडा इन आवर ऑफिस, बट मोर देन आई डोंट नीड मोर देन 20 सीट्स बिकॉज आधे लोग घर से जहां भी हैं वो वहां से अपना काम कर रहे हैं, वो सिस्टम लॉग इन कर रहे हैं, वो कॉल्स कर रहे हैं, वो अपनी विजिट्स करा रहे हैं, मीटिंग करा रहे हैं। एंड ये सिस्टम उन सबको भी आपस में कनेक्टेड रखता है। तो द ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम इज कि और जो हमारे एडवाइजर्स हैं उन जो पार्टनर्स हैं उनको ऐसे बंदे मिल सकते हैं जो रेफ शेयरिंग पे, अदरवाइज वो इंडिविजुअली। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ माय आगरा पार्टनर, तो आगरा में वो अपने अंदर में बंदे रखना चाह रहे थे जो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे आ जाए, बट वो नहीं रख पाते थे। और सेकेंडली वो बहुत ज्यादा मैन फोर्स ऑफिस में नहीं रख पाते थे बिकॉज उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उससे ज्यादा बड़ा नहीं था। तो दिस सिस्टम अनेबल्ड हिम फर्स्ट ऑफ ऑल, जो घर में गर्ल्स या लेडीज बैठे हैं वो काम करना चाहती है, वो दिन में 4 घंटे ही काम करना चाहती है एंड शी इज नॉट आस्किंग फॉर एनी सैलरी बट इज विलिंग के चलो मेरी अगर एक महीने में एक सेल भी आई, एक रेंट की डील भी होगी तो इट विल ब्रिंग हर 10, 20, 30 और 50,000 रुपीज। सो उस तरीके के लोगों तक, और जो लोग साइड में एज ए रेफरल काम करना चाहते हैं, दैट मेरे किसी फ्रेंड को लेना है, ही इज नॉट लुकिंग फॉर इनकम बट यस कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं तो दे आर इवन हैप्पी। सो ये आगरा वाले ने फिरोजाबाद तक में विच इज लाइक 50 किलोमीटर फार फ्रॉम आगरा, वहां पे भी अपने एडवाइजर्स अपॉइंट कर दिए। छोटे छोटे शहरों में जहां बहुत ज्यादा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बट बिकॉज इंडिया में डेवलपमेंट इतना हो रहा है, यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास इतना डेवलपमेंट है कि हर छोटे शहर में कहीं ना कहीं बायर्स हैं। और ये लोग बिकॉज ये लोकली उन बायर्स को जानते हैं, उन पे ट्रस्ट है उनका, तो इसलिए ये वहां ट्रांजेक्शन इजीली करते हैं। अगर वही एक लीड हमें फेसबुक से आई होती तो वो अननोन लीड है, ना हम कस्टमर को जानते हैं ना कस्टमर हमको जानता है। तो ट्रस्ट, रियल स्टेट में ट्रस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये सिस्टम उनको विदाउट पुटिंग एनी सॉलिड बिग कॉस्ट, ये ना आपको बहुत बड़ा डेटाबेस चाहिए बिकॉज कोई बंदा अगर सॉफ्टवेयर खरीदता है तो सबसे पहला है कि सॉफ्टवेयर तो खाली मोबाइल की तरह मिलेगा। तो मोबाइल में जब तक कॉन्टैक्ट्स ही नहीं है तब तक आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, जब तक वॉलपेपर पे अपना वॉलपेपर नहीं है आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। So this system comes with a lot of database. We have more than 1,000 project database in the system of different cities. नोएडा ही अकेले में it's more than 350 projects. अगर हम बैंगलोर की बात करें तो we have more than 200 projects on our website in our system. तो ये सिस्टम उनको जब मिलता है तो उनको छोटी छोटी चीजों के लिए ना, जो कोऑर्डिनेशन रियल एस्टेट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो कोऑर्डिनेशन बहुत इजीली हो पाते हैं। और सिस्टम एक उनको भी लगता है कि आज मेरा ना ये काम सिस्टम कम दिखा रहा है तो मुझे इतना तो करके ही उठना है। तो एंटरप्रेन्योर्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि एक मोटिवेशन नहीं होता सुबह काम करने का, स्पेशली व्हेन यू आर अ फ्रीलांसर। ऑफिस में अगर काम करते हो तो आपको बताया 10 बजे ऑफिस पहुंचना है,
नहीं तो घर में जब बैठे हो तो सोचते हो आज यार कोई काम नहीं है तो ठीक है, क्यों पेट्रोल वेस्ट करूंगा, घर में ही बैठता हूँ। तो आप सिस्टम खोल के बैठते हो, घर पे भी बैठे हो और सिस्टम खोल के बैठते हो, तो आपको अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। आपको दिखता है कि इतनी प्रॉपर्टीज यार ना सेल में अवेलेबल है, चल इस क्लाइंट को ये वाली बताता हूँ। सो ये अपने आप में एक इकोसिस्टम है जो बायर्स के लिए और सेलर दोनों ही अपॉर्चुनिटीज है, एडवाइजर्स के लिए बहुत सारी, जिससे वो पैसे कमा सकते हैं। I keep reading so many things on internet, but internet doesn't give you a complete, मतलब ना उससे आपकी queries बढ़ती हैं ना कि you don't get answers for every possible thing. So PR is like my teacher. So whenever I have anything in mind, he's quite busy, but then also I leave voice notes to him. Whenever he is comfortable, he always respond to those voice notes, because एज ए एंटरप्रेन्योर हमें रेगुलरली सोचना होता है हम अपने ऐसा क्या करें कि हमारे बंदों की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, हमारी मार्केटिंग कॉस्ट कम हो, और जो भी इंडस्ट्री में नया, नॉट टेक्नोलॉजी में नया कुछ हो रहा होता है, तो वी ऑलवेज ट्राई कि हम इसको अपने यूज केस कैसे मतलब क्रिएट कर सकते हैं। So Septus में the good thing is that they are always ready to listen. They keep trying, because you won't believe, in last 13 years I've dealt with so many partners in Salesforce partners, and मुझे बताया वो ना सिंपल मैन पावर सप्लाई कर देते हैं आपको, कि आपको जो करवाना है आप बता दीजिए, ये कर देगा। बट हमें ही इतना सब कुछ आता होता तो हम टेक्नोलॉजी वाले बन जाते हैं, हम तो रियल स्टेट वाले हैं। नहीं, रिक्वायरमेंट हमें ये बताया कि ये ऐसे हो जाए, बट टेक्निकली उसको कैसे फ्रेम करना होगा, क्या ध्यान रखना होगा, और किन आगे जाके सिस्टम कहाँ ऐसी पोजीशन में तो नहीं पहुंच जाएगा कि हमें मतलब टू बी वेरी क्लियर कि आगे हम अटक जाए। तो पीआर, द वन बिग थिंग व्हिच आई लर्न फ्रॉम पीआर वाज कि आपको सिस्टम में बहुत ज्यादा, बिकॉज हम लोग पहले जो ऑर्ग यूज करते थे अपनी कंपनी में, उसमें ना इतनी ज्यादा कोडिंग हो गई थी, इतने ज्यादा बीएफ पेजेस बन गए थे, और जब वो क्लासिक से लाइटनिंग पे कन्वर्ट हुआ तो हमारा सिस्टम इस पोजीशन में ही नहीं था कि हम उसको कर पाते हैं। हमें फाइनली उस सिस्टम को हटा के एक नया लेना पड़ा, और पीआर ने हमें बताया कि शुरू से ही आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि इतनी कोडिंग है, ऐसे सब कुछ मत कर देना कि कल को आपको स्टैंडर्ड सिस्टम आप यूज ही, तो नेटिव सिस्टम, कीप योर सिस्टम नेटिव। सो दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम पीआर, एंड आई ऑलवेज टेक केयर, जिससे भी हम बात करते हैं हम उसे यही बताते हैं कि कीप इट नेटिव। तब बड़ा अच्छा लगता है कि हमने उसको बोला यहाँ ऐसा होना चाहिए, वहां वैसा होना चाहिए, वो लाके फिक्स करके बना के तो दे देता है, फिर बाद में जब वो दूसरी चीज से इंटीग्रेट करो वो सब खड़ा हो जाता है, फिर आपको नाउ यू हैव टू, यू आर बैक ऑन जीरो। So this is one big thing which we learn from Septus, and they are always open for new things. मतलब मुझे तो I sometimes feel कि इनका ना लैब है, they keep trying new things. So they are sitting in a lab कि कुछ नया बनाते हैं आज। So this is really very good, which I like about Septus. Otherwise बाकी सारे लोग ना जो है उन्हीं से वही चीज मतलब पीआर को तो मैं सेल्स फोर्स का ना फुंगफुंग वांगडू बोल सकता हूँ, कीप ट्राइंग न्यू थिंग, एंड ही इज ऑलवेज ओपन द गुड। नहीं तो क्या होता है, आप एक नया आइडिया लेके किसी पार्टनर के पास जाओ, वो बोलेगा अच्छा ये करना है तो 10 लाख रुपए लेके आओ, फिर दोनों हम आपके पैसे से हम ट्राई करेंगे, फिर आपको बताएंगे होगा या नहीं होगा। द गुड थिंग अबाउट सेप्टस इज कि शायद हम लोग, मैं और पीआर शायद कभी फाइनेंस से रिलेटेड किसी चीज पे 90-95% टाइम वी डोंट इवन डिस्कस, बिकॉज हमें मालूम है कि ये हमसे वो रीजनेबल कॉस्ट लेंगे जो एक कस्टमर पे चार्ज होनी चाहिए, बाकी ये अपने उस पे लगाएंगे, बिकॉज एंड ऑफ द डे उनका भी रिसर्च हो रहा है, विच एनेबल्स अस कि हम और ज्यादा ट्रायल्स कर पाते हैं, और शायद जितना पैसा दूसरे चार्ज करते हैं उसका शायद 10% भी हमें नहीं देना पड़ रहा होता है। We are not spending on experiments. Experiment are be done by PR. मेरी टीम में बंदी है विशाखा, तो विशाखा looks after entire this thing. अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होगी, she will say सर पीआर सर से बात करो। because इंडस्ट्री में शायद कोई दूसरा है ही नहीं, हम कम से कम 5-7 और सारे प्लैटिनम पार्टनर्स हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, 5-7 लोग हैं, लेकिन they'll never come up with a solution. वो बोलेगा उससे बात करते हैं, वो बोलेगा उससे बात करते हैं, वो कहेगा इंटरनेट पे ढूंढ लो, फिर बोलेगा यूट्यूब पे ढूंढ लो, वो सब नहीं मिलता। मतलब टू बी वेरी क्लियर, आपको ना फिक्स चाहिए। मतलब मैंने जब सबसे पहले जब को पायलट सुना था
तो मैंने PR से डिस्कस किया, इट इज Salesforce का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज सो कॉस्टली दैट अ MSME लाइक अस कैन नॉट बाय दैट, और टू बी वेरी क्लियर इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो फिर हम यही सोचते थे ये तो बड़ी कंपनीज के लिए है। सेप्टस हेल्प्ड अस टू, मतलब कि उसको जुगाड़ करके कैसे आपको काम कैसे आप भी यूज करो पूरा। लोग देखते हैं ना तो उनको ये समझ में ही नहीं आता, बिकॉज सबसे बड़ा चैलेंज था जब हमारे यहाँ सिस्टम में डेटा सेंटर वगैरह नहीं था, एक एक बंदा ना 1,000 इंक्वायरी पे बैठा होता था, और एक प्रॉपर्टी अगर 1 करोड़ की है तो 1000 मतलब वो 1000 करोड़ के बिजनेस पे बैठा होता था। तो उसके कभी टारगेट समझ ही नहीं आता था कि ये बंदे से कितना बिजनेस हम एक्सपेक्ट करें। मतलब एंड ऑफ द मंथ एक आप इंक्वायरीज के बिहाफ पे ये एस्टिमेट लगाते हो कि ये बंदा भी इतने बिजनेस में बैठा है, एंड फाइनली अगर इसका 2%, 3%, 1% क्लोजर रेशियो आएगा तो इसका टेंटेटिव इस मंथ एंड में ये सेल आएगा। एंड फाइनली वो ऐसी सिचुएशन होती थी कि जो पुराना बंदा है वो पुरानी उन्हीं लीड्स में ही गोल घूमता रहता था, और हमें यही नहीं पता होता था कि किसको ज्यादा लीड्स की जरूरत है और किसको कम लीड्स की जरूरत है। और द बिग थिंग कि एक हम लोगों ने जब अपना सिस्टम शुरू में यूज करना शुरू किया था, तो एक बंदे ने 5 इंक्वायरी ली और 2 क्लोजर किए, और एक बंदा 100 इंक्वायरी लेके बैठा है और उसने 2 क्लोजर किए। तो हमें रियलाइज हुआ कि 5 इंक्वायरी वाला बंदा ना ज्यादा काम का है, बिकॉज उसकी अगर हम मार्केटिंग कॉस्ट लगाएं तो एवरेज रियल स्टेट में ना बहुत बड़ी मार्केटिंग कॉस्ट होती है। तो पर क्लोजर वी स्पेंड, अगर सिंपल डिजिटल मार्केटिंग की लीड है तो इट्स लाइक 50 to 75,000। अगर प्रिंट एड वगैरह तक से कोई लीड कॉस्ट अगर आती है तो हमारा क्लोजर कॉस्ट उसमें जो आता है वो अराउंड 1 लाख to 2 लाख रुपीज तक क्लोजर कॉस्ट जाता है। So every lead is a cost. Minimum lead which you get in real estate is around 750, 800 to 3,000, 4,000 rupees. So this is the daily we are spending 20, 30,000 on Google. So and finally आप उस डेटाबेस को संभाल के ही नहीं रख पा रहे हो। और बिग चैलेंज क्या होता है कि लोग यही नहीं हिसाब लगा पाते थे कि होगा क्या बिजनेस, एंड ऑफ द डे सेल क्या एक्सपेक्ट करूंगा एज ए ओनर, मेरे इतने पैसे लग गए और मुझे ये तो बता सेल कितनी आने वाली है। सो दिस सिस्टम अनेबल्ड, और हमने छोटे छोटे बहुत सारे PR ने यूज केसेस, जैसे ना ब्रोकरेज मैनेजमेंट, वो क्या होता था वो ऑल टुगेदर डिफरेंट ही सिस्टम चल रहा होता था, इतनी ज्यादा इन ट्रांसपेरेंसी थी कि आधे टाइम लोग 2 साल 3 साल में भी हिसाब नहीं होता था कि मेरे को कितने इंसेंटिव मिलने वाला है। हमारा सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट है, आपने सेल क्लोज किया एंड फाइनली यू आर एबल टू सी कि इस महीने का मेरा इंसेंटिव क्या है। और ये इंसेंटिव, बिकॉज रियल स्टेट में क्या होता है जब आपको ब्रोकरेज रिसीव हो जाती है बिल्डर से, देन यू पे दैट इंसेंटिव। तो लोगों को यही नहीं पता होता था, वो बेचारे अकाउंट वाले का रोज सर खाते थे, मेरी कोई ब्रोकरेज आई क्या, मेरी कोई ब्रोकरेज आई क्या। तो नाउ माय फाइनेंस टीम एंटर्स व्हाटएवर वी रिसीव, और उनको दिख जाता है उनके सिस्टम में कि आपका ये आज रिसीवेबल में आ गया, so tomorrow you can claim this incentive. So many small thing which we tried and actually giving us a very good result. But relevant property was something which PR actually वो हमने कभी वैसे विजुलाइज नहीं किया था। आज मेरी टेलीकॉलर्स कस्टमर को सजेस्ट कर पाती है, सर आपके बजट में ना इस एरिया में ये 4 प्रॉपर्टीज आती है, बिकॉज हम सिस्टम ऑटोमेटिकली उन्हें दिखा देता है कि आज ना पहले वही काम करने के लिए हमें कम से कम 5 से 7 साल एक्सपीरियंस का बंदा चाहिए होता था, अभी 1 साल के एक्सपीरियंस का बंदा भी ना उतनी नॉलेज वाली बात करता है, बिकॉज उसके पास उतना कंटेंट है, उतना डेटाबेस है, तो सब कुछ सामने स्क्रीन पे जस्ट ऑन क्लिक्स फोन पे बात करते करते ही सब कुछ कर पाता है।